रहम अपना खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना मसीहा अपनी रहमत की नजर कर सारे आदम पर As you commanded, go to the ends of the earth, bringing the nations to you, Lord.
help us to do that today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah.
बहुत सारे सफेद चमड़ी वाले लोग, beetje getinte mensen कुछ ऐसे जो कि थोड़े से ब्राउन रंग के लोग थे, en misschien nog iets donkere mensen. और कुछ ऐसे लोग जो कुछ ज्यादा ब्राउन थे. Dat er in een van de brieven van Paulus staat, और पौलुस रसूल के खत में लिखा है, hij heeft de tussenmuur weggebroken. उसकी किताब में एक लिखा है कि उसने एक दरमियान की दीवार को गिरा दिया. Amen. De muur die mensen zo vaak opbouwen. वो दीवार जो कि लोग बनाते हैं. Maar wat is het geweldig om te weten? और बहुत ही खुशी की बात है Dat we één God dienen. कि हम एक खुदा के मानने वाले हैं En dat we allemaal kinderen van hem zijn. और हम सब उसके बच्चे हैं. Er zijn geen verschillen in het koninkrijk van God. क्योंकि खुदा की बादशाही में कोई फर्क नहीं है. En ik zeg het zo vaak en dat geloof ik met heel mijn hart. और मैं बड़ी दफा ये कहता हूँ और मैं अपने दिल से एक यकीन रखता हूँ. Als wij avondmaal vieren met elkaar, और जब हम खुदावंद के बदन और खून में शामिल होते हैं, dan stroomt het bloed van Jezus door onze aderen. और फिर खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे अंदर आ जाता है, En dan hebben wij allemaal hetzelfde bloed. और फिर हमारा सबका खून एक हो जाता है. Zo één heeft God ons gemaakt. और इस तरह से खुदा हमको एक बनाता है. Amen. Amen. Zijn we één familie? क्या हम एक घराना है? Yes, amen. 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 Hallelujah. Amen. En pastor Nadine heeft een thema samen met zijn kerkraad bepaald. और पादरी नदीम ने अपने चर्च और चर्च कमेटी के साथ मिलकर एक मौजू चुना है आज की इस कन्वेंशन के लिए. En dat thema is I am the light of the world. और वो जो मौजू है वो ये है कि दुनिया का नूर मैं. Jezus is het licht van de wereld. यीशु मसीह दुनिया का नूर है. Maar de vraag vanmiddag is, wat betekent dat nu eigenlijk? लेकिन आज दोपहर मेरा ये सवाल है कि ये रोशनी ये नूर क्या है? Wat betekent dat Jezus het licht van de wereld is? ये क्या बात है कि वो दुनिया का नूर है? Ik wil even teruggaan naar het begin van de Bijbel. और मैं खुदा के कलाम के शुरू की जो किताब है वहां पर जाना चाहता हूँ. Want voor de schepping was alles duisternis. इससे पहले कि दुनिया होती एक अंधेरा था. En zelfs als je niet in God gelooft, और इस बात पर कि अगर आप खुदा पर यकीन नहीं रखते, dan zeggen alle wetenschappers dat. और वो सब भी यही कहते हैं Eens was er niets, कि एक वक्त था कि कुछ भी नहीं था, maar God schiep het licht. और फिर खुदा ने रोशनी को बनाया. En dan staat er in Genesis dat hij de zon schiep en de maan. और फिर खुदा के कलाम में लिखा है पैदाइश में कि उसने सूरज और चांद को बनाया. En waarom deed hij dat? और वो उसने क्यों किया? Om licht te geven. इसलिए कि रोशनी दे सके. Nou, even iets over licht. और अगर कोई बात हम रोशनी के बारे में जानना चाहें, Licht zien wij heel vaak als een positieve. रोशनी जो है उसको हम अच्छे लफ्जों में याद करते हैं और अच्छे लफ्जों में उसको देखते हैं. Als het alleen maar donker zou zijn, लेकिन अगर सिर्फ अंधेरा हो zou er niets groeien. और फिर कुछ उगेगा नहीं, Kunnen wij zelfs niet leven. फिर इंसान जिंदा भी नहीं रहेगा, Is er geen bestaan. और फिर शायद इस दुनिया पर कुछ ना रहे. En we weten allemaal dat het zonlicht zo hard nodig is. और सूरज की रोशनी बहुत ही जरूरी है. Om uiteindelijk gewas te hebben wat groeit. और वो जो पौधे और सब्जियां उगती हैं, फल उगते हैं, ये रोशनी से है. En uiteindelijk om te kunnen eten en te leven. और वो हम खाते हैं और जिंदा रहते हैं. Een paar dagen zonder zon en deze planeet zou afgekoeld zijn en onbewoonbaar zijn. और इस दुनिया के ऊपर अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो ये कुछ ही अरसे के बाद ये खत्म हो जाएगा. Maar ik wil een principe neerleggen. लेकिन मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ. Stelt u voor, deze hele ruimte is donker. सोचे कि ये पूरी दुनिया जो है इस पर एक अंधेरा छा जाए Er is geen licht. और रोशनी ना हो. Je kunt elkaar niet zien. आप एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे. En je hebt een klein kaarsje. और लेकिन एक छोटी सी अगर कोई मोमबत्ती आपके हाथ में आ जाए En als je dat kaarsje aansteekt, dan ga je iets zien. और अगर आप उसको जलाएंगे तो उस आग की वजह से रोशनी होगी और आप कुछ देख सकते हैं. Maar let op, लेकिन एक बात पर गौर करें bestaat er iets कि कोई चीज ऐसी है जो कि अब पैदा हो चुकी है. wat je kunt aansteken of aan kunt zetten, कोई
रोशनी जिसको आप ऑन करते हैं या आग से आप उसको रोशन करते हैं, Want het licht verdrijft. जो कि एक रोशनी बन जाती है। Onmogelijk. लेकिन ये नामुमकिन है कि हम अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते, रोशनी को खत्म नहीं कर सकते। Duisternis bestaat alleen maar bij de afwezigheid van licht. अंधेरा जो है वो उस जगह पर है जहां पर रोशनी नहीं। Je hebt energiecentrales die elektriciteit opwekken opdat wij licht hebben. हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि रोशनी को तैयार करने के लिए, बिजली को तैयार करने के लिए बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, बहुत सारे तरीकेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। Er zijn geen energiecentrales die duisternis opwekken. लेकिन ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो अंधेरे को तैयार कर सके। Want alleen licht kan duisternis verdwijnen. लेकिन सिर्फ वो उजाला है जो कि रोशनी, जो कि अंधेरे को खत्म कर सकता है। En als er licht is, kan er geen duisternis tegenop. और जहां पर रोशनी है वहां पर अंधेरा अपने आप से कम नहीं कर सकता रोशनी को। En dan hoef je niet eens voor in de Bijbel te geloven. और ये इस बात पर गौर करने के लिए, इसको ईमान में लाने के लिए आप जरूरी नहीं है कि ईमानदार हो। Dat zeggen alle wetenschappers. और ये जो साइंसदान है वो हर कोई ये बात कहता है। Begrijpt u? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Duisternis is er alleen maar bij de afwezigheid van licht. अंधेरा सिर्फ उस जगह पर है जहां पर रोशनी मौजूद नहीं। En 2000 jaar geleden लेकिन 2000 साल पहले komt Jezus op de wereld. यीशु मसीह इस दुनिया में आया En Jezus zegt op een groot feest, और एक बहुत बड़े एक प्रोग्राम था और वहां पर यीशु मसीह ने ये बात कही, ik ben het licht der wereld. और उस ईद पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही कि दुनिया का नूर मैं। Denkt u eens even in, de 30 jaar dat Jezus in de verborgenheid gewoon heeft geleefd op deze aarde. आप सोचे जरा कि एक 30 साल तक एक शख्स है जिसकी जिंदगी के अंदर कभी नूर नजर नहीं आया। Was hij het licht der wereld? और ये किस तरह से अब दुनिया का नूर बन गया? Ja. क्या वो दुनिया का नूर है? जी। Maar zag je het? क्या आपने देखा उसके अंदर कोई नूर निकलते हुए? Nee. जी नहीं। Je zag niet dat Jezus het licht der wereld was. लेकिन वो अपने अंदर से कोई रोशनी उसके अंदर से नहीं निकल रही थी जिसको हम देखते। Aan de buitenkant van iemand kun je dat niet zien. और किसी शख्स के जो बाहरी उसका जिस्म है उसके अंदर से हम ये नहीं देख सकते कि उसके अंदर कोई रोशनी है। Maar toen Jezus na zijn 30ste aan zijn bediening begon, लेकिन जब 30 साल की उम्र में उसने एक खिदमत करना शुरू कर दी, dan zegt de Bijbel, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, het volk dat in duisternis leefde, और जो कौम अंधेरे में बैठी थी, heeft een schitterend licht gezien. और उन्होंने फिर एक रोशनी, एक नूर देखा, Zij die woonden in de schaduw van de dood, और जो मौत के साया की वादी में थे, worden door het licht beschenen. और वो रोशन हो गए। En Jezus was gewoon een man die je kon zien. यीशु मसीह एक हम जैसा एक इंसान था जिसे हम, मैं और आप देख सके। Hoe was hij dan het licht van de wereld? फिर ये दुनिया का नूर कैसे बन गया? Dan staat er, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, vanaf dat moment और उस वक्त ging Jezus prediken over het koninkrijk van God. उसने खुदा की बादशाही की मुनादी करना शुरू कर दिया। Het koninkrijk van de God, wat onzichtbaar was, और खुदा की बादशाही जिसे हम देख नहीं सकते, wat niet op deze aarde was, जो कि इस दुनिया में नहीं, dat kwam tot openbaarheid. और उसको उसने मुकाशफे की तरह खोल के रख दिया, Dat ging zich openbaren. और उसने उस मुकाशफे को दुनिया के सामने रख दिया। En wat betekende dat? और इसका क्या मतलब है? Er gebeurde iets enorms in feite. और कुछ अजीब काम हुआ है जो वो दिखा रहा है। Jezus ging mensen genezen. और उसने लोगों को शिफा देना शुरू कर दी, Jezus ging mensen bevrijden. और उसने लोगों को निजात देना शुरू कर दी। Jezus ging psychische mensen ging die losmaken van duisternis. और वो लोग जो अंधेरे में थे और जो ज़हनी तौर पर बीमार थे, उसको उसने निहाल करना शुरू कर दिया। Jezus gaf de armen weer hoop. और वो जो गरीब थे उनको उसने एक बड़ी उम्मीद दिलाई। Wat was het licht van binnen in Jezus? और यीशु मसीह के अंदर ये कौन सी रोशनी है? Om de wil van God te doen. और वो जो कर रहा है वो खुदा की मर्जी से करता है, Om zijn koninkrijk te openbaren.
u voorstellen, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? mensen zonder hoop, वो लोग जिनको कोई उम्मीद नहीं, mensen gekweld door ziekte, और वो लोग जो बीमारियों में मुब्तला, hulpeloos. उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं कि वो कैसे आगे जाएंगे। Jezus kwam 2000 jaar geleden. यीशु मसीह 2000 साल पहले आया En de mensen hebben hem aan hem vastgeplant. और फिर बहुत सारे लोगों ने उसको थाम लिया। Ik ben ziek, bij hem kan ik genezing vinden. मैं बीमार हूं, अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे शिफा मिल जाएगी। Ik ben maanziek, ik heb een boze geest, bij hem kan ik bevrijding vinden. और बहुत दफा वो लोग जानते थे कि मेरे अंदर पुत्र हुए हैं, यीशु के पास जाऊंगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। Het licht openbaart zich in het koninkrijk van God door wonderen en tekenen. और खुदा की बादशाही को उसने लोगों पर जाहिर करके खुदा के नूर को अपने अंदर से जाहिर किया। Jezus gebruikte zijn handen. और यीशु मसीह ने अपने हाथों को इस्तेमाल किया। Jezus gebruikte zijn mond. और यीशु मसीह ने अपने मुंह को इस्तेमाल किया। Maar er was iets heel speciaals. लेकिन कुछ चीज यहाँ पर है जो कि बड़ी ही खास है। Want je handen doen niets. आपके हाथ कुछ नहीं कर सकते, Je stem doet niets. आपकी आवाज कुछ नहीं कर सकती। Maar als het licht van God in Jezus scheen, और वो रोशनी जो खुदा की है जब यीशु के अंदर थी, en er een aansluiting kwam met zijn handen, और फिर वो रोशनी वो नूर जो था वो उसने एक राब्ता दिया उसके हाथों के साथ, dan kwamen er genezende handen. और फिर वो ऐसे हाथ थे जो शिफा देते थे। En als het licht van God zijn stembanden aanraakt, और वो नूर जो उसके अंदर था जब वो उसके अंदर काम करके उसके मुंह से निकलता, er waren het woorden van genezing en heling. और वो जो अल्फाज थे वो शिफा देने वाले अल्फाज थे। Dat doet licht. और ये है उस नूर का काम। Dat doet het licht van God in Jezus zijn leven. और वो खुदा का नूर जो यीशु मसीह में था ये नजर आना शुरू हो गया। En daarom was hij het licht der wereld. इसलिए वो दुनिया का नूर है। Alleen daar. सिर्फ यही एक वजह है। Openbaring van het koninkrijk. और ये खुदा का मुकाशवा है जो उन लोगों पर खुल गया। En nu? और अब Wij willen allemaal door Jezus aangeraakt worden. हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें छुए। Wij willen hem zien. हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को देख सकें। En als we vanavond met elkaar gaan bidden, और अगर आज रात को हम दुआ करेंगे dan roepen we tot de Heer, Heer, raak ons aan. और फिर हम दुआ करेंगे खुदा मुझे छू, Laat uw kracht op me komen. ओ अपनी कुव्वत को मेरे ऊपर आने दे। Heer, ik ben ziek. ओ खुदावंद मैं बीमार हूँ, Heer, ik ben gebonden. ओ खुदावंद मैं जकड़ा हुआ हूँ। Maar Jezus in de hemel. लेकिन यीशु मसीह अब आसमान पर है। Hij is wel hier, want de Bijbel zegt waar 2 of 3 te samen zijn, is hij hier. वो यहाँ पर है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां मौजूद हूँ। Maar de handen zijn er niet. लेकिन वो हाथ यीशु मसीह के हमारे दरमियान में नहीं है, De stem is er niet. वो आवाज हमारे दरमियान में नहीं है। Maar wat dan? लेकिन क्या Dat licht wat leven brengt in Jezus' tijd. लेकिन वो नूर जो उस वक्त लोगों में एक नई जिंदगी और उम्मीद देता था वो हमारे दरमियान में है। Dat is niet alleen gelegd in Jezus. वो सिर्फ यीशु मसीह के अंदर ही वो नूर नहीं है। Mattheüs 5 vers 14 zegt. मत्ती 5 बार उसकी 14 आयत में लिखा है, Jullie आप लोग allemaal, हम सब als je christen bent, अगर आप मसीही हैं zijn het licht in de wereld. आप दुनिया का नूर हो। ये खुदा के कलाम में लिखा है। Het licht wat God de Vader gaf in het leven van Jezus. वो नूर जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में रखा, Dat licht wat planten deed groeien. और वो रोशनी जो कि उन पौधों को उगाती है, Dat zelfs de dieren en de aarde schiep. और यहाँ तक कि उन जानवरों को जिंदगी देती है, Dat zelfs de aarde voortbracht. और इससे कि ये जमीन जो है ये पैदावार देती है। Dat licht woont in ons. और वो नूर जो है वो हमारे अंदर रहता है। Kunt je je voorstellen? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? Besef je dat? क्या आप इस बात को कभी आपने इस पर गौर किया है? Dat
licht wat de hele schepping voortbracht. वो रोशनी जो इस पैदाइश के सारे इंतजाम को और उगने को सबको अपने पास रखती है, Heeft God in ons gelegd. यीशु मसीह ने उसको हमारे अंदर भी रखा है। Amen. आमीन। Amen. Wat een wonder. और ये कितना खूबसूरत मौजज़ा है हमारे लिए। Dan zijn we niet zomaar als deze achtergelaten. और फिर हम यूं ही कोई ऐसे लोग नहीं कि जिनको खुदा ने अपनी हुजूरी से निकाल दिया है, Maar God heeft ons de mogelijkheid gegeven लेकिन खुदा ने हमें ये मौका दिया है om zoals in de tijd van Jezus कि यीशु मसीह के वक्त में dezelfde dingen te doen. बिल्कुल हम उसी तरह के काम कर सकें। Waarom? क्यों? Door het licht wat in ons woont. क्योंकि वो रोशनी हमारे अंदर है। Maar nu een hele serieuze vraag. लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपसे, Merk ik daar ook wat van? क्या आप इसको महसूस भी करते हैं? Ik geloof met mijn hele hart dat God in ieder van ons het licht heeft geplaatst. मैं ईमान रखता हूं और मुझे यकीन है कि उसने अपनी उस रोशनी को हमारे अंदर रखा है, Het licht van Jezus. यीशु मसीह का नूर। Maar soms लेकिन कभी कभी ऐसा होता है wordt dat lichtje kleiner en kleiner. कि वो जो रोशनी है हमारे अंदर वो कम और कम और कम होती जाती है। En wat gebeurt er dan? और फिर क्या होता है? Duisternis neemt toe. और जो अंधेरा है वो कब्जा करने की कोशिश करता है। In Jezus और यीशु मसीह में brandde het licht volledig. और यीशु मसीह में वो नूर जो था, वो रोशनी जो थी, वो पूरी तरह से चमकती थी 100%. और 100% तक वो काम करती थी यीशु मसीह के अंदर। Als ik soms naar onszelf kijk, लेकिन अगर मैं अपने ऊपर गौर करता हूँ, dan is het geen 100%. लेकिन शायद मुझे ये कभी कभी लगता है कि ये 100% नहीं है। En hoe komt dat? और ये कैसे होता है? Waarom kunnen wij niet 100% het licht van de wereld zijn? लेकिन ये कैसा है कि हम 100 गुना इस दुनिया का नूर नहीं बन सकते? En God wil dit. लेकिन खुदा ये चाहता है। Maar waarom? लेकिन ऐसा क्यों है? Ik heb een voorbeeld bij me. लेकिन मेरे पास मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। Dit is ons leven. ये हमारी जिंदगी है। Stelt u voor, dit is uw lichaam. सोचे कि ये आपका जिस्म है, Ja. Maar je ziet niets van het licht. लेकिन आपको कुछ नजर आ रहा है कि आपके अंदर रोशनी है। Maar God heeft in ons lichaam licht gegeven. लेकिन खुदा ने हमारे इस जिस्म के अंदर एक रोशनी रख दी है। Maar soms ons gedrag लेकिन हमारा उठना बैठना, हमारा रवैया, हमारी सोच जो है, leidt ertoe और वो हमें इस तरफ ले चलती है dat het licht uitdroogt. कि हमारे अंदर की रोशनी जो है, नूर जो है, वो अंधेरे में बदल जाए। Als wij hoogmoedig zijn, लेकिन अगर हम अपने बड़े मन में रहते हैं kijk eens wie ik ben. और फिर सोचते हैं कि देखो देखो मैं क्या चीज हूँ, Kijk eens hoe God mij gebruikt. और देखो देखो खुदा मुझे किस तरह से इस्तेमाल करता है, Kijk hoeveel geld ik heb. और देखो मेरे पास कितना पैसा है। Het licht dooft uit. और फिर वो जो रोशनी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। Hoogmoed, लेकिन आपका बड़ापन जो है geldzucht. और पैसे की जो ख्वाहिश है, Zijn mensen alleen maar bezig met geld. और इस दुनिया में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। En wat gebeurt er? और फिर क्या होता है? Het licht wat God in ons gelegd heeft dooft uit. और वो जो रोशनी खुदा ने हमारे अंदर रखी है वो आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो जाती है। Oh, verlangen naar allerlei dingen die mooi zijn. और फिर हम दुनिया की शान शौकत की तरफ अपनी निगाहें लगा देते हैं। En mooie dingen mogen. और फिर हम खूबसूरत चीजें और अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए चाहते हैं। Maar niet in extreem. लेकिन फिर ऐसा नहीं है। Begrijp je? क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं? Er zijn zoveel dingen die in ons leven spelen. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर असर करती हैं। Waarvan God zegt, ik moet mij terugtrekken uit je leven. और फिर ऐसा होता है कि खुदा अपने नूर को हमारी जिंदगी से खींचता है। En wat als licht begon in mijn bekeringstijd. और जब वो रोशनी, जब मैंने तौबा की थी तो वो मेरे अंदर कहाँ गई? Na 10 jaar is het verdwenen. और वो 10 साल के बाद खत्म हो जाती है। Begrijpt u? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Een leven zonder God wordt het.
और फिर जिंदगी ऐसे हो जाती है कि वो जिंदगी जिसमें खुदा नजर नहीं आता। En ik spreek uit ervaring. लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। Ik weet wat het is. मुझे पता है कि क्या है। Maar weet u wat er gebeurt आपको पता है कि क्या होता है फिर als wij op onze knieën gaan जब हम अपने घुटनों पर चले जाते हैं en berouw tonen tegenover de levende God. और फिर हम उस खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं En ons bekeren van de verkeerde dingen. और फिर हम अपने आप से तौबा करते हैं, अपनी सोच से तौबा करते हैं, अपने कामों से तौबा करते हैं Langzamerhand और फिर आहिस्ता आहिस्ता komt licht op. और फिर रोशनी हमारी जिंदगी में आती है। Het begint heel klein. लेकिन ये रोशनी शायद बड़ी थोड़ी होती है, En je merkt dat God in je leven aanwezig is. लेकिन आपको पता चल जाता है कि खुदा मेरी जिंदगी में मेरे साथ काम कर रहा है। En hoe meer je aflegt लेकिन वो जितना ज्यादा हम उसके साथ चलते हैं en hoe minder je je zorgen gaat maken, और जितना हम अपनी फिक्रों से दूर चले जाते हैं hoe meer het licht opent. और उतनी ही ज्यादा रोशनी हम हमारे अंदर से जाहिर होती है। Begrijpt u? आपको इस बात की समझ आ रही है? Het ligt niet aan God dat er zo weinig licht is in de kerk. ये खुदा पर नहीं कि आपके अंदर नूर कम है, Hij zoekt een lichaam, een vessel, बल्कि खुदा उस नूर के लिए एक जिस्म चाहता है जिसमें वो काम करे, waar niets in zit. लेकिन उस जिस्म के अंदर कोई गुनाह और कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। Waar God in kan leven. उस जिस्म के अंदर खुदा रहना चाहिए। Een verbreking van ons oude leven. अपनी पुरानी जिंदगी को तोड़ना और खत्म करना, En ons laten vullen met de liefde van Jezus. और फिर जब हम खाली हो जाते हैं फिर हम खुदावंद के प्यार और उसके कलाम से अपने आप को भर लेते हैं। En weet u wat er dan gebeurt? और आपको पता है फिर क्या होता है? Ik heb zo vaak gebeden voor zieke mensen. और मैंने अपनी जिंदगी में इतने बीमार लोगों के लिए दुआ की है En dan zei ik, wees genezen. और फिर मैं कहता हूँ कि शिफा पा जा। En als het niet gebeurde, ging ik harder schreeuwen. और जब अगर उसको शिफा नहीं मिलती तो मैं और चीखता हूँ En dat diep kan veel harder schreeuwen dan ik. और फिर नदीम जो है वो मेरे से कितना ऊंचा बोलता है। Toch? या ब्रदर En dan, soms gaan we met z'n allen eromheen staan. और ऐसा होता है कि फिर हम अपनी टीम के साथ सभी उस बीमार के एक Gewoon, we moeten heling en genezing hebben. और फिर हम चाहते हैं कि रोशनी यहाँ पर हो जाए और शिफा मिल जाए En bevrijding. और ये शख्स निजात पा जाए। Maar als er geen connectie is लेकिन अगर कोई आपका रास्ता नहीं है tussen mijn handen मेरे हाथों में en de lichtbron van binnen. और वो नूर जो मेरे अंदर है अगर उसका रास्ता नहीं है En als er geen connectie is tussen mijn spreken en tussen mijn lichtbron van binnen. और वो एक नूर जो मेरे अंदर है और मेरे बोलने में अगर उसमें कोई आपस में रास्ता नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, Gebeurt er niets. कुछ हमारी जिंदगी में बदलने का नहीं। En dan zeggen we soms, oh ja, ik heb iets gevoeld. ओ फिर कभी कभी हम बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ महसूस हुआ Ik है, heb iets ontvangen. ओ लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, Flauwekul. और वो शायद लोग झूठ बोल जाते हैं। Als God genezing geeft, और जब खुदा शिफा देता है als God bevrijding geeft, और जब खुदा हमें निजात देता है dan doet hij het goed. और वो फिर पूरी तरह से देता है। Wij hebben een volmaakte vader. और हमारा जो बाप है वो महदूद नहीं लामहदूद है, Een vader van het licht. वो रोशनी का बाप है, Die herstel wil brengen in ieder van ons leven. वो हमारे हम में से हर एक को शिफा और निजात देना चाहता है और पूरी तरह से, Niemand uitgezonderd. और उसने किसी एक को छोड़ना नहीं। Al ben ik de grootste zondaar. और आप कितने भी गुनहगार हम उसके सामने आ जाए Al heb ik het verschrikkelijkste leven और geleid. शायद आपकी पुरानी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, Jezus is in staat लेकिन यीशु मसीह वो शिफा दे सकता है, om ons leven वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, een leven van licht te maken. वो हमारी जिंदगी को रोशन कर सकता है, Een leven wat schijnt in deze wereld. और जो जिंदगी इस दुनिया में मिक्स हो चुकी है उसको वो अलग कर सकता है। Niet hoe ik eruit ziet. वो ऐसा नहीं कि मैं देखने में कैसा हूँ, Niet omdat ik een blank huidje heb. वो इसलिए नहीं कि मेरी गोरी चमड़ी है, Maar omdat het licht in mijn leven woont. मेरे अंदर उसका नूर है Het licht van Jezus. और यीशु मसीह का नूर मेरे अंदर है। En ik ben heel eerlijk. और मैं इस बात से बड़ा मैं सच्चाई से ये बोलता हूँ,
Ik zoek naar meer licht. और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मैं तेरे नूर को और ज्यादा से ज्यादा पाऊँ En als ik op mijn knieën lig voor de Heer te huilen, और जब मैं अपने घुटनों पर होकर खुदा के सामने रोता हूँ vraag ik Heer licht. और मैं कहता हूँ कि खुदावंद मुझे और रोशन कर दे Er zijn zoveel mensen die ziek zijn. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं Zoveel mensen soms ook in de kerk die gebonden zijn. और ऐसा भी है कि चर्च के अंदर भी बहुत सारे लोग बीमार होते हैं Maar God is zo genoeg. लेकिन खुदावंद जो है इतना बरकत देने वाला खुदा En Jezus komt ons helpen. और यीशु मसीह हमारी मदद के लिए आप पहुंचता En है de Heilige Geest die dagelijks bij ons is, और वो जो यीशु मसीह के साथ था वो पाक रूह हमारे पास भी आ जाता है die instrueert ons और वो फिर हमें बताता है कि किस तरफ चलना है कैसे चलना है hoe ik het licht in mijn leven kan gebruiken. और फिर वो पाक रूह हमें सिखाता है कि किस तरह से इस रोशनी को हम पा सकते हैं Om het licht van de wereld te worden. कि हम इस दुनिया का नूर बन जाए Dank u wel dat u mij vergeven heeft. अपनी जुबान से नहीं बल्कि अंदर से एक सच्चाई के साथ उससे कहे कि खुदावंद मैं माफी चाहता हूँ और मुझे छू ले En Vader, ik vraag vanavond de mondeling. ऐ आसमानी बाप मैं चाहता हूँ कि आज रात मेरे लिए एक मौजज़ा हो जाए Om het licht te laten groeien. कि मेरे अंदर की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाए En de ziel van deze mensen. और इन लोगों की जिंदगियों में इनकी रूह में O God, ओ मेरे खुदा dank u wel dat u het doet. हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा करने के काबिल है Door uw Heilige Geest. तू अपने बातों के वसीला से करता है U bent waarlijk het licht van de wereld. और हम जानते हैं कि तू दुनिया का नूर है Dank u wel, Heer Jezus. ओ यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं Amen. आमीन
Let your face shine upon the withered soul. Let all the shackles